6 years back, when I lost my father, I was in a very bad shape. टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है. इट्स अ वेरी कॉमन लिमिटिंग बिलीफ. Yeah. सबसे पहला जो सिग्नल होता है स्ट्रेस का इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर गट. कीपिंग थिंग्स इनसाइड, मोहित, इज द वर्स्ट थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स डू टू देमसेल्व्स. आपके एक क्लाइंट है, आपने बताया था कि या उन्होंने आपका 3 महीने का जो प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम वो ज्वाइन किया था एंड राइट. विद इन 1 ईयर उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा का इनकम वो अचीव किया. शी केम टू मी विद दिस कि मनी आना पूरा बंद हो गया. सो शी इज अ बिजनेस वुमन हरसेल्फ. एंड एक पंडित जी ने आके मुझे बोल दिया कि यू नो आपके 2 साल या 3 साल टाइम पीरियड खराब है. अब बिकॉज माई बिजनेस इज गोइंग इन सच अ डाउनफॉल, मुझे ये बिलीव होने लगा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन को ना लोग काफी बार विशफुल थिंकिंग के रूप में लेते हैं. किसी को मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, बंगलो चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना, अपने फोन में वॉलपेपर लगा लेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे. फोन में या वॉलपेपर लगा लिया, लिख लिया आई वांट टू दिस, आई वांट बाय दिस. तो ऐसा ऐसा होता है क्या? मतलब डज इट रियली वर्क और काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है? Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. Her name is Devankita Ray, and she is a mindset coach and a healer. And इन्होंने अब तक काफी सारी वुमेन को हेल्प किया, उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उनके पास्ट ट्रॉमा से निकालकर उनको एक ऐसी लाइफ दी है जहां पर पीस है, क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है एंड सक्सेस नेचुरली फ्लो होती है. सो आज का पॉडकास्ट होने वाला है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, past trauma, इसका root cause क्या है, solution क्या है, and much more. So, Devankita, thank you so much for your time and welcome to the podcast. I'm super duper excited for this episode. I hope you also excited to share your knowledge and wisdom. absolutely, Mohit. Thank you so much for reaching out and doing this with me. It's a great opportunity for me as well, and I'm equally excited. Yeah, here is my first question. As Mhm. you are a mindset and healer, right? So, how your journey got started? Like, was there any turning point when you decided, okay, this is what you mean to do? Yeah. So actually, like I never really thought about this line as a career, but 6 years back when I lost my father, I was in a very bad shape. And you know, as everybody says कि time के साथ सब heal हो जाएगा and all. So I also felt the same कि grief सबके life में आता है. Everybody ends up losing their parent, and time के साथ सब ठीक हो जाएगा. But 3 years down the line, I was a mess. And on top of that, I had my son after 3 months of losing my dad. So with a small kid and being a new mother, जो needs आती है, plus handling grief with that, I think मुझसे नहीं हो पाया वो. And that's when I reached out to my coach. She is an ex-colleague, but she also got into the same line. And मैं उनके posts देखती थी social media पे, and I couldn't be more thankful, Mohit, that she came into my life. She literally changed everything. And mindset coaching and healing जब मैंने खुद के लिए ली, I realized the potential it has and how much it is needed for every person. कि नॉट नेसेसरीली ग्रीफ हो. मेरे केस में ग्रीफ था, किसी और के केस में कुछ और हो सकता है, बट वी ऑल आर डीलिंग विद सो मच nowadays, especially you know with social media coming in, our lives changing completely. There are too many things that get into our head, and mindset healing and coaching just changed my life, my perception about life, the way I handled myself, my emotions. And that's when I felt that if I could be that person for even one woman out there, I would be like extremely grateful for the life I have. So that's when you know I got into certifications. मैंने certifications किए, different healing modalities के, coaching की, and that's how the journey basically started 2.5, 3 years back now. Okay, this is very inspiring. And आपने ना काफी एक व्हाट शुड आई से लाइक चैलेंजिंग टास्क फर्स्ट स्टेप लिया था, जो था कि सीकिंग फॉर हेल्प. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, काफी सारे लोग जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, इन सारी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं. तो मैंने एक Right. पॉइंट देखा है कि एक चीज देखी है कि लोग आसानी से ओपन अप नहीं होते, अपनी Mm. प्रॉब्लम को किसी स्पेशलिस्ट के साथ शेयर करने में डरते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जजमेंट का इशू होता है कि अगर मैं Absolutely. सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, लाइक हाउ दे विल जज मी, हाउ दे विल सी मी, वो Yeah. उनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत कमजोर इंसान है, मेंटली या इमोशनली बहुत कमजोर है. सो हाउ डिड यू डील विद दिस? Honestly, maybe because I never grew up in a situation at home जहाँ पे openly अपने emotions को open up करना was considered a taboo.
वो ओके। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, लाइक वो ओपनली अपना प्यार दिखाते थे। वो कभी वैसे नहीं थे कि यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर इमोशंस बिकॉज यूर अ मैन, या इमोशंस दिखाना वीकनेस, इट्स अ वीकनेस, वैसा हमारे घर पे कोई सिचुएशन नहीं था। बट येस, हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली वो फियर ऑफ जजमेंट जो आपने बोला कि कैसे बात करे, कैसे बोले कि जो सबके साथ होता है वो एक चीज मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। सो मेरा भी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद माई कोच वाज लाइक, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, एंड आई डोंट वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये हो रहा है। बट देन अगेन, एज आई सेड, व्हेन आई वेंट इनटू द प्रोग्राम, मुझे एक्चुअली में समझ में आया तो ग्रीफ वाज जस्ट द आउटकम ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट हैड हैपेंड एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप। बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स थे, इमोशनल बैरियर्स थे, जिनकी वजह से मैं चैनल नहीं कर पा रही थी। सो ग्रेजुअली आई ओपन अप। ये नहीं था कि फर्स्ट डे मैंने ओपन अप कर लिया कि हाँ मुझे पता है मुझ में प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। मुझे बस पता था मैं डील नहीं कर पा रही। एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ वही होता है, उनको ये पता होता है कि वो डील नहीं कर पा रहे, बट उन्हें भी यही लगता है कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, इट्स जस्ट अ फेज, बिकॉज दैट्स हाउ वी ऑल आर ब्रॉट अप, राइट? कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाते, इट्स अ वेरी कॉमन लिमिटिंग बिलीफ। बट आई हैव हैड क्लाइंट्स जो बचपन के ट्रॉमास की वजह से देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी भी उनमें दिखते हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज। सो आई थिंक दैट आप जब उस फियर ऑफ जजमेंट को हटा देते हो, बिकॉज इफ आई एम हियर टू हेल्प यू, जजमेंट इज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड, चाहे वो इतनी छोटी बात ही क्यों ना हो। मैं जज नहीं करने वाली। एंड जब लोग उस माइंडसेट से हटेंगे ना, आई थिंक दे विल बी डूइंग अ फेवर टू देमसेल्व्स। बिल्कुल। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ पास्ट ट्रॉमा? जैसे आपके केस में था लाइक सॉल्टी हुआ, बट आपने अपने बहुत करीबी इंसान को खोया, आपने अपने डैड को खोया। या ठीक है, फिर आप उसी टाइम फेस के दौरान आप फिर मॉम भी बनी, तो वो जी। सारी चीजों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था आपके लिए। तो हम्म। वो एक पॉइंट था आपके लिए जहां पर आपने रियलाइज किया कहीं ना कहीं आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। राइट। बट और लोगों के लिए कॉज और कुछ भी हो सकता है, लाइक देयर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। सो व्हाट आर दोज रूट कॉजेज जो लोगों को सिग्नल्स समझने चाहिए and उनको अगर ये सिग्नल्स दिखते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो उनको हम्म। पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद देम। Oh, absolutely. Physical signals are always there. या सबसे पहला जो सिग्नल होता है स्ट्रेस का is always related to your gut. If you have gut issues, there is definitely something going on related to stress, anxiety, and things like that, right? Then कभी कभी आप देखोगे कि there are certain times जब आपको randomly बहुत in the chest area आपको थोड़ा सा पेन फील हो रहा है. This means usually have a blockage towards love, कनेक्शन, फैमिली, फ्रेंडशिप, कुछ वैसा आपको जब हर्ट करता है, तब आपके like chest pains and uneasiness in breathing and these kind of things happen. Then bad dreams are related to a lot of traumas in life, like because our subconscious stores things from our past lives. जो बिलीव करते हैं उनके लिए डेफिनेटली पर सबकॉन्शियस इज लाइक योर जीनी, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो कैन लिटरली बिल्ड और ब्रेक योर लाइफ। तो वो सारे जो आपको आप जो पास्ट ट्रॉमास के बारे में बोल रहे हो कि कैसे इंसान समझे, अननोइंगली चाइल्डहुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड नो, इट्स नॉट ऑन द पेरेंट्स। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स सम किड्स आर वेरी वल्नरेबल बाय नेचर, तो उनके फ्रेंड्स की बातों से वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, बिकॉज अगेन द अदर पर्सन इज ऑल्सो अ किड। वो भी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके ये सारी चीजें बोल रहा है, जो मे बी एक और बच्चा हैंडल नहीं कर पा रहा, बट घर पे आके ही फियरफुल कि मम्मी पापा से ये बात कर पाएंगे या नहीं। एंड दैट कीपिंग थिंग्स इनसाइड, मोहित, इज द वर्स्ट थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स डू टू देमसेल्व्स, बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें समझने वाला कोई नहीं है, या कोई ऐसा है नहीं जिसके सामने वो एक्सप्रेस कर सके। एंड आई थिंक कीपिंग दोज इमोशंस, दोज वट एवर यूर फीलिंग इनसाइड, when you grow up, it shows in your characteristics, it shows in the relationships you have, it shows in your career, in a lot of instances in life उन चीजों के इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रह जाते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप हीलिंग के जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू हैव टू बी ओपन टू टॉक अबाउट योर लाइफ इन जनरल, लाइक राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हम अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस में कैरी करते रहते हैं। So that kind of leads to a lot of traumas in life. Yes. ओके। यहाँ पर आपने एक पॉइंट आउट किया था गट Mhm. इशू का। ओके। Got it. Yeah. तो काफी सारे लोग जो इसको देखने वाले हो सकता है उनको ये समझ नहीं आए हो,
जब हम्म। गट इश्यूज बॉडी में होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? सो ऑब्वियसली गट रिलेटेड, जैसे आपको ये लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट पे अनईजी वाला फील होता है, यू ऑलवेज फील लाइक यू नीड टू गो टू द वॉशरूम, और ये स्पेशली तब होता है जैसे सोचो आपका कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज टू गो इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टॉक, राइट? ओके। कोई कुछ फर्स्ट टाइम के लिए कर रहा हो जहां पे यू आर नर्वस, यू आर फीलिंग लाइक यू आर इन द लाइमलाइट, या कुछ भी करने के लिए अगर आप नर्वस हो एंड यू गेट दैट अनईजी फीलिंग इन योर टमी एंड थिंग्स लाइक दैट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेस you're feeling. So in general life, people who are very stressful, उनको हमेशा maybe gut issues in the sense pain रहता होगा, they need to go to the washroom a lot of times, उनको छोटे छोटे बातों पे they feel like उनका like motion issues हो रहे हैं and things like that. So usually that's your body telling you कि the stress is to an extreme level that directly it impacts your gut. ओके। ओके। एंड जब हीलिंग की बात करते हैं ना, तो काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हीलिंग इज ऑल अबाउट, क्योंकि मूवीज में तो यही दिखाया जाता है Hmm. कि हीलिंग इज ऑल अबाउट जादू टोना, कैंडल्स, क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग। Yeah. सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ऑनेस्टली ये जो आपने बोला मूवीज में दिखाया जाता है, अपार्ट फ्रॉम मूवीज आई थिंक ये थोड़ा सा जेनरेशनल भी है, बिकॉज हम भी बचपन में हमारे बचपन में हीलिंग तो पता था नहीं, बट वेन एवर एनीथिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स केम, जहाँ पे मे बी पीपल, जो आज के डेट में हम रेकी बोलते हैं, दैट यू हैव सर्टेन मंत्रास दैट यू चैंट, प्राणिक हीलिंग हो कि सर्टेन मंत्रास दैट यू चैंट जो करके आप किसी को बेटर फील करवा रहे हो, ये हमारे बचपन में वो दाईजान टाइप का जो कॉन्सेप्ट रहता था उसमें होता था वो। बट येस अगेन इट्स जनरेशनल, हमें वही लगता था कि ऐसे कुछ सम पीपल जस्ट डू सम काइंड ऑफ वुडू या कुछ मंत्र पढ़ते होंगे और कुछ मैजिक हो जाता होगा, जबकि हीलिंग इज अ कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट. while there are concepts like reiki, pranic healing and all जो आपको there are certain chants जो आपके body को help करता है, but if you're talking about mindset coaching and healing as a vertical altogether, it is literally taking control of your mind, of your emotions, and driving your life in control of how you want to drive your life, rather than कि आपके emotions आपको overpower करे, which is the case with maximum people. हमें पता नहीं होता कि हम क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटी बातों पे. सो इट्स योर इमोशन ड्राइविंग यू, बट माइंडसेट कोचिंग एंड हीलिंग गिव्स यू दैट अरीना टू अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड वर्क्स, आपके माइंड इमोशंस को कैसे ड्राइव करता है एंड हाउ कैन यू कंट्रोल देम थ्रू सेल्फ टॉक. So that would be the basic difference between Jadoo Tona and something like a traditional healing method. एंड काफी सारे लोग इसको ना सूडो साइंस से भी कंपेयर करते हैं कि किसी को Absolutely. स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो लाइक उससे दो अच्छी बातें कर लो, उसका डिप्रेशन चला जाएगा. Hmm. ओके, लाइक गुड फीलिंग वाली बातें हैं. Hmm. ओके, सो इट इज इट ऑल अबाउट इट, और इट इज समथिंग डीपर देन दिस? It is absolutely a lot deeper, Mohit. अगर आप आज रो रहे हो, like there are times when I break down my fathers till now, because I have understood one thing about grief कि it will never go away. We just have to know how to deal with it. तो आज के डेट में भी when I break down for my father, my husband, my friends, my mom, भैया जो भी है, everybody will be like अब 6 साल हो गए हैं, you need to get over, he is happy where he is and all of that. These are good talks. These are ways to tell somebody कि अब कुछ कर नहीं सकते तो चलो ये सारी बातों से अपने मन को आप बहला लो. बट हीलिंग इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट. हीलिंग इज लिटरली कि ये आपका इशू है और आप यहाँ पे आपका रूट है, वहां पे द वर्क गोज ऑन. इट्स अ रूट वर्क. इट इज नॉट एट अ सुपरफिशियल लेवल कि आज आप रो रहे हो आज आप चुप हो जाओ, क्योंकि आपको वो रोना फिर 10 दिन बाद आएगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10 दिन बाद आपके आसपास कोई ना हो. So you should have those tools and techniques that you are able to handle yourself. That's the difference in a pseudoscience of making you feel good and how healing actually works. ग्रेट. एंड आपके क्लाइंट है, आपने बताया था कि Yeah, उन्होंने आपका 3 महीने का जो प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, वो ज्वाइन किया था, एंड right. विद इन 1 ईयर उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा का इनकम वो अचीव किया. लाइक Yeah, ये जो माइलस्टोन है. right. सो कैन यू जस्ट ब्रेक डाउन द कंप्लीट ब्लूप्रिंट और रोड मैप जो आपने उनको दिया था, लाइक हाउ एग्जैक्टली दिस मैजिक हैपेंड? इज Yeah. लाइक ये मैजिक था या कोई what was this? Like 2 crore of revenue in Yeah. just with the help of just 3 months of mentorship program. It is huge. It is, and it is one of my greatest achievement as a coach because the day she told me this, I couldn't be more happier. थोड़ा सा मैं आपको background दूंगी. So when I met her, Yeah. she came to me with this कि
मनी आना पूरा बंद हो गया. सो शी इज अ बिजनेस वुमन herself and she was into her business very successful. सब अच्छा जा रहा था. And once COVID hit, as a lot of businesses got impacted, so did hers, because it was about exhibitions and all, right? So wo jab the day I had a conversation with her, that's what she told me, that Debankita, I am literally in a mindset ki, my family believes in kundli and things like that, and though I never believed in them, and एक पंडित जी ने आके मुझे बोल दिया कि आपके 2 साल या 3 साल टाइम पीरियड खराब है. अब बिकॉज माई बिजनेस इज गोइंग इन सच अ डाउनफॉल, मुझे ये बिलीव होने लगा है कि मे बी मेरा टाइम खराब है, मे बी मुझसे नहीं हो रहा. एंड कूडोस टू हर, शी टुक दैट लीप कि नहीं, मुझे ये बिलीव नहीं करना है, आई वॉन्ट टू चेंज दिस माइंडसेट. सो अगेन, अगर वो उस फेथ से नहीं आती या उस बिलीव से नहीं आती दैट लेट मी ट्राई एंड चेंज माई माइंडसेट, मैं कुछ नहीं कर पाती. Right? First that. Second, I think in terms of achieving your goals, let it be financial, let it be career, let it be health, relationship, there are lots of things जो आपको ना पुल बैक करे रखता है आपके अपने माइंड में. आपके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं. लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हम सब में है, आप में है, मुझ में है, कि हम जो ये अच्छे बुरे के बारे में सुनते हैं बचपन से, अगर आप एक वे से सोचो, दोज आर लिमिटिंग बिलीव्स. सो ब्रेकिंग देम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे माइंड पे सर्टेन कंडीशनिंग्स होती है, ब्रेकिंग दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आवर सबकॉन्शियस वर्क्स, राइट? तो ये सारे जो आपने जो बोला, मेरे 3 मंथ का प्रोग्राम है, उसमें मैं डिफरेंट हीलिंग एंड माइंडसेट मोडालिटीज को कंबाइन करके मेरे प्रोग्राम में ये सारी चीजें आई ऑफर. सो we did it like a step by step thing. First was self discovery. She understood why she is the way she is. Then we went into limiting beliefs, then how NLP works, then different healing modalities. And the breakthrough happened when, like, one day we were having our session, and then she just told me that I don't know, intuitively I'm feeling like कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें कुछ मनी रखे हुए हैं from a difficult time that she had, which I would not like to spill here. And I feel like I need to get rid of that. I feel that is blocking my money energy. And I was like, if you feel that you can get rid of that, please do, because intuitions are your subconscious talking. There is some connection. अगर आपके इंट्यूशन ने आपको वो बोला है, there is some connection. And trust me, Mohit, with all the healing and coaching and getting rid of that one thing that was holding her money energy, it completely changed for her. So she met me in Feb or March last year, and her goal was to get to the 2 CR revenue by December. And the last time I spoke to her was in September end, and she was like, Debankita, I'm already closing what I had aimed for by end of December. And it was a goosebump moment for me, honestly. Like, touch wood, I hope a lot of success her way. But yeah, a lot of things go in the background. It's just not one thing that's holding you back. Great. It is magical, but it is not a magic. It is not a magic. No. You have to work on yourself, Mohit, in Absolutely. anything in life. बिल्कुल. Yeah. एंड काफी सारे लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, जिनके बड़े बड़े गोल्स होते हैं, उनको बहुत कुछ करना है. ओके. Right. और लेकिन जैसे आप सुनो, उनको वो रात को सोएंगे, सोचेंगे, कल दिमाग में चलता रहेगा, ये करना, ये करना, ये अचीव करना, ये अचीव करना है. जैसे ही सुबह होगी, जो उनका डेली रूटीन होगा, लेट्स सपोज किसी का फोन चलाने का, वो फोन चलाने लग जाएंगे, माइंड में चलेगा कि चलो कल से करते हैं. वो प्रोडक्टिवनेस नहीं आ पा रही है. हाँ. ओके. सो व्हाई डज इट हैपन? इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी होता है? See, I'll tell you, procrastination is a mindset in itself. ये जो Yeah. कल करेंगे आप बोल रहे हो ना, it is somewhere a lack of motivation. कुछ तो है आपके अंदर जो आपके अंदर वो मोटिवेशन ला रहा है, but only when things are going haywire. For example, आप जॉब में हो, right? और ये पॉडकास्ट आप, you really want to be a podcaster, but आप एक जॉब में भी हो जो आपका फुल टाइम अर्निंग है. Now, obviously, that's safe, that's secure. And आपका पॉडकास्ट is something that you want to do, but वो मोटिवेशन नहीं आ पा रहा. सो देर इज अ अंडरलाइंग इशू. इट माइट बी कि आपको मनी की जरूरत है एंड आपका मनी एनर्जी बहुत लो है, जिसकी वजह से आप जॉब नहीं छोड़ पा रहे हो. आपको एक फियर है कि नहीं, मैं वो छोड़ दूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ फियर दैट वी नीड टू वर्क ऑन. Procrastination again comes from a sense of underconfidence, a sense of no motivation, a sense of maybe knowing कि मुझसे होगा कि नहीं.
वो जो एक डिसबिलीव होता है ना कि होगा कि नहीं ये फ्यूचर में, whether I'll be able to become what I want to become. I think there are a lot of factors behind procrastination and it differs from person to person. Yeah. But if they work on mindset, then it can be fixed. You Absolutely. can help them, right? Absolutely. Any successful person in this world is working on this. Any successful Yeah. person. Every time, like as I am a cricket fan, I watch cricket a lot. So Yeah. not a lot, but yeah, sometimes I watch. तो Mm-hmm. क्रिकेट प्लेयर्स के इंटरव्यूज चलते रहते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, Right. और इवन जितने भी हम अमीर लोगों को लें, नॉट अमीर बट सक्सेसफुल लोगों को लें, People who are दे doing what ऑल, they want to do. या Yeah. या Yeah. ऑल दे से लाइक माइंडसेट इज एवरीथिंग। They have everything. Absolutely. Absolutely. एक ही चीज होगी, या तो माइंड आपको कंट्रोल करेगा या फिर आप माइंड को कंट्रोल करोगे। अगर आप माइंड बिल्कुल. को कंट्रोल कर रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जैक्टली. एंड द थिंग इज कि माइंड को कंट्रोल करना जितना डिफिकल्ट लगता है ना, with practice it becomes easy. I'm not saying it's a one day thing. It can never, हम्म। क्योंकि आपके ट्रॉमास या आपका आपको जो भी अभी डिस्टर्ब कर रहा है वो भी एक दिन में नहीं हुआ है. इट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो वैसे ही लोगों को जो लगता है ना कि यार एक सेशन कर लिया, दो सेशन कर लिया, अभी तक मुझे बेटर फील नहीं हो रहा, आपको नहीं हो सकता. एंड दिस आई टेल टू ऑल माई क्लाइंट्स कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि एक दिन बैठेंगे बात करेंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आई विल टीच यू द टूल्स एंड टेक्निक्स, बट प्रैक्टिस आपको करना है. जैसे आपने नेगेटिव टॉक्स एंड नेगेटिव इमोशंस को प्रैक्टिस कर करके अपने दिमाग में बैठा लिया है, वैसे उसको हटाने के लिए आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो हीलिंग मोडालिटीज रहते हैं, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आपके ब्रेन को रिवायर करने की जरूरत है. दैट्स ऑल. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. वी नीड टू रिवायर आवर ब्रेन्स. लोगों को तो यही रहता है ना कि अगर वो भी किसी भी बैड हैबिट में वो आ गए और वो चेंज करना चाह रहे हैं, अभी तो अभी एक एक मिनट में चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली. जो चीज की आदत उनको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से लगी है, उसको उसको एक एक दिन में कैसे चेंज किया जा सकता है। लोग यही एब्सोल्युटली. करते हैं कि उनको पता है उनको कुछ करना है, कुछ करने के लिए हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, जी. और उस हैबिट को चेंज करना वो सोचते हैं कि एक ही दिन में हो जाएगी, वो एक दिन में नहीं होगी। एग्जैक्टली. उसके लिए And टाइम लगेगा। yes, and this also plays as a demotivation for people. And I have been in that loop also. मैं बिल्कुल deny नहीं कर रही. Like when I was starting off as a coach, initially obviously you have to figure out how to get clients, how to do this. And मुझे लग रहा था कि अरे content post कर रही हूँ, reach out कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लोग क्यों नहीं आ रहे? And that was a huge factor of demotivation की वजह से procrastination. But अब 2.5, 3 years down the line, I'm understanding कि it's all about consistency and believing कि ये होगा. आई वॉन्ट टू डू दिस एंड होगा. एंड अपने तरफ से आप क्या कर सकते हो? अपने तरफ से आप एफर्ट्स डाल सकते हो. वो रिजल्ट से ना डिटैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द बिल्कुल। मोर यू ऑब्सेस ओवर समथिंग, somehow वो आपसे बहुत दूर भागता रहता है. एंड व्हेन यू आर इन दैट एनर्जी दैट इट्स लाइक लेट इट फ्लो, मैजिकली थिंग्स हैपन. मैजिकली थिंग्स हैपन. काफी सारे लोग तो यही करते हैं, एक दिन ट्राई करेंगे, बोलेंगे भैया हमसे नहीं हो रहा, खत्म, हटो. ट्रू. टाटा बाय बाय। या एग्जैक्टली. ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लाइक जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम्स हैं, हाउ एग्जैक्टली डज इट इम्पैक्ट समवन्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप? Stress, anxiety, and most importantly, depression affects every aspect of your life, Mohit. It is not only about health and it is not only about relationship. Like I have seen people जिनको अपने they were extremely career driven, but when depression hit, and the sad part is they didn't even know that depression hit them. सारी चीजें खराब हो रही थी, उनके आंखों के सामने खराब हो रही थी, and they were not able to pull themselves up. So it would be my earnest request to anybody watching this podcast कि अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ चीज आपको कॉन्स्टेंटली बॉदर कर रहा है, आप फिगर आउट करने की ट्राई मत करो वेदर इट्स एक्सट्रीम और लो और समथिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, थोड़ा सा रोना आ गया था. हम खुद से ये जो सेल्फ डायग्नोस करने का जो इशू है ना, पीपल रियली नीड टू स्टॉप डूइंग दैट एंड एक्चुअली गो टू एक्सपर्ट्स. आपको जिसके पास भी जाना है, इफ यू फील लाइक यू वांट टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, गो. साइकोलॉजिस्ट, ओके. कोच, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, बट सीक हेल्प. क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपके लाइफ को कैसे ओवरटेक कर रहा है. एंड इट इम्पैक्ट्स, एज यू सेड, इट इम्पैक्ट्स एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. हेल्थ गोज फॉर अ टॉस बिकॉज आवर फिजिकल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ. आप देखना, देयर आर डेज व्हेन इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके मेंटली, यू आर नॉट एबल टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ द बेड. Yeah. आपके हेल्थ में कोई इशू नहीं है, यू आर जस्ट नॉट फीलिंग गुड मेंटली. सो जब आप मेंटली ठीक नहीं होते हो तो फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट तो इज नंबर वन. सेकंड, रिलेशनशिप्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके हियर,
You will not be able to be yourself with your friends, your family, your partner. किसी आपके बच्चे, आप किसी के भी साथ you cannot be yourself, and that leads to a lot of issue. So rather than trying to handle everything on your own, आप try कर लो, but अगर आपको लग रहा है कि it's prolonged, it's going on for a long time and मैं उसको overcome नहीं कर पा रही, seek help. It's very important. डेफिनेटली, Yeah, बिल्कुल करना चाहिए। एंड काफी सारे लोग ना पास्ट ट्रॉमा को इग्नोर करते रहते हैं, absolutely. एंड वो पास्ट ट्रॉमा इट इज लाइक अ बैग। Yeah, अगर आपने इसको इग्नोर किया, आपके बच्चों में दिखेगा ही दिखेगा। absolutely. आप उसको carry राइट। कर, आप तो उसको every day carry कर रहे हो in every बिल्कुल, aspect of your life. बिल्कुल। तो ये जो पास्ट ट्रॉमा है किसी के बच्चे पर कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है? किसी के बच्चे पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है? इट्स बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल थ्रू आउट बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बचपन से ये फील करवाया गया है दैट दे आर फैट, दे आर थिन, इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है, राइट? आपको या बॉडी शेम करना, आपको अपने स्किन टोन पे शेम करना एंड थिंग्स लाइक दैट. सो यू विल, विदाउट इवन नोइंग, यू विल पास दैट ऑन टू योर चाइल्ड. अगर आपको सारी जिंदगी ऐसे फील करवाया गया है दैट यू आर अ सर्टेन, मे बी अ डार्क स्किन टोन है आपका, और आपको उसको लेके बहुत बोला गया है, अगर आपकी बेटी होगी स्पेशली, यू विल बी लाइक यार पहले चेक करो कि बच्ची गोरी है या शी हैज माई टोन. इट्स अ ट्रॉमा. क्या आप उस बच्चे से प्यार नहीं करोगे अगर वो डार्क हुई तो? दिस इज हाउ वी अननोइंगली पास ऑन आवर ट्रॉमास टू आवर चाइल्ड. And along with the traumas, we also pass on our limiting beliefs to our child. ये अच्छा है, ये बुरा है. मोहित, every person's good and bad is very individual to them. जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए स्मोकिंग इज नॉट बैड, बट कोई और होगा जिसके लिए स्मोकिंग इज अ बिग नो नो, इट्स अ बैड हैबिट. तो आप कैसे डिफाइन करोगे गुड और बैड? यस, हेल्थ पैरामीटर्स के हिसाब से आप स्मोकिंग को ले सकते हो, बट इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी जज एज गुड एंड बैड. And when you do that in front of your kids because of the traumas or the things, limiting beliefs that you have been taught as a kid, आप automatically उस बच्चे पे एक mindset create कर रहे हो, which फिर वो अपने जनरेशन पे पास करेगा. एंड दिस इज हाउ जनरेशनल ट्रॉमा कम्स इनटू द पिक्चर, जो मैं आपको पहले बोल रही थी कि इट इज जनरेशंस वर्क. जादू टोना एंड ऑल अबाउट हीलिंग इज अ जनरेशनल थिंग, या क्योंकि उस टाइम से चलते आ रहा है. पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अभी कोई, लेट सपोज मैं हूँ, आई एम नॉट Yeah, मैरिड, बट लेट सपोज मैं हूँ, right. मेरे पिताजी से या मम्मी से मुझे ट्रॉमा मिला, उनको हम्म. उनके पिताजी से मिला, तो हम्म. वो जनरेशन चली आ रही है। तो हम्म. मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इसको अभी यहीं रोक सकूं? सी, फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड. जैसे मैंने कहा ना, अगर कुछ एक चीज आप में रिपीटेडली आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज. एंगर हमें लगता है इज अ ट्रेट, इज एन इमोशन विच इज ट्रू, बट हैव यू सीन सम पीपल हैव टू मच ऑफ एंगर इश्यूज, लाइक वो छोटे छोटे बातों पे स्नैप करते हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. हमारे जो भी इमोशंस है, हम जो भी वट एवर वी एक्सप्रेस, चाहे वो आप, यू माइट हैव मेट समबडी जो बहुत छोटे छोटे बातों पे रो देता है, वेरी इमोशनल, और हमें लगता है क्या यार छोटे छोटे बातों पे रो रहा है. देर आर रीजंस, देर इज समथिंग दैट्स हर्टिंग दैट पर्सन. ठीक है, तो अगर आप ऐसे ट्रेट्स अपने में देख रहे हो ना कि कुछ है जो आपको रिपीटेडली हॉन्ट करे जा रहा है, आपका ब्रेकअप हुआ 4 साल पहले, आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, दो पीपल विल बी लाइक अरे यार इट वाज जस्ट अ ब्रेकअप, बट एवरी माइंड इज डिफरेंट. द वे वी परसीव अ हार्ट ब्रेक इज वेरी डिफरेंट. जो इंसान हार्ट ब्रेक से डील कर रहा है, मे बी दैट पर्सन डिड नॉट हैव somebody who loved him or her as much as the बॉयफ्रेंड और द गर्लफ्रेंड, इसलिए वो ओवरकम नहीं कर पा रहे. सो कुछ भी चीज अगर आपके लाइफ में रिपीटेडली वापस आ रही है, कोई भी ट्रेट्स, कोई भी इमोशनल ब्रेकडाउन, टॉक टू अ स्पेशलिस्ट. एंड उसको ब्रेक करने का वही तरीका है, वरना आप उसको कैरी करते करते आप दूसरे रिलेशनशिप्स में जाओगे, आप शादी करोगे, द इम्पैक्ट विल गो ऑन टू योर पार्टनर, योर किड्स, एंड इट विल जस्ट कैरी ऑन. और आप ओल्ड एज में भी फील करोगे दैट यू आर रियली नॉट फीलिंग गुड मेंटली. बिल्कुल। तो एंड आज की डेट में तो जेनजीज बहुत जल्दी इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, या इट्स अ स्कैरी क्योंकि जनरेशन. अब से अगर हम पिछले 20-30 साल पहले की बात करें तो इट इट यूज टू हैपन वेरी रेयरली कि कोई स्ट्रेस में एंजाइटी। लेकिन आज के डेट में जेनजीज तो, क्योंकि बहुत जल्दी रिलेशनशिप वाली स्टेज में आ जाते हैं और राइट. फिर ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर उसको वो सहन ही नहीं कर पाते क्योंकि इतना माइंड सेट या मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है। True. Somewhere social media has a role in हम्म, it, Mohit. I would definitely say that. Also,
इट्स सैड एंड आई डोंट नो इफ इट्स द राइट थिंग टू से, बट कहीं ना कहीं जो बहुत फेमस लोग हैं, जिनके वॉइसेस को लोग सुनते हैं, जिनके लाइफ को लोग समझते हैं कि यार दिस इज द लाइफ टू बी, दे आर समहाउ ग्लैमराइजिंग डिप्रेशन, दे आर ग्लैमराइजिंग एंजाइटी। ये चीजें टीआरपी की चीजें नहीं है। फर्स्ट वो चीज समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माइंडसेट सेटबैक्स है, जिनको ओवरकम करना इज वेरी नीडेड, वेरी मच नीडेड। तो जब ऐसा कोई इंसान स्टेज पे आके बात करता है कि मुझे ब्रेकअप हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, तो अ जेन ज़ी हु इज मियरली इन देयर टीन एज, वो उसको सुन के भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। And while we really cannot control the social media and what they are consuming in terms of content, but I it would be my humble request to people to stop glamorizing depression, anxiety and all, because ये बहुत बहुत ही disturbing चीजें हैं, and people who go through it know कि क्या हालत होती है. Yeah. So yeah, Gen Z's, while it's a difficult generation to handle altogether, but you know these kind of right directions need to be given to them at home. कि आप बात करो, पेरेंट्स शुड बिल्कुल। बी ओपन टू लिसनिंग टू देम. अब अब दुनिया चेंज हो रही है, फर्स्ट पेरेंट्स में वो एक्सेप्टेंस आना पड़ेगा दैट हाँ, बीइंग यू नो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का कोई इज हैपनिंग नाउ. आप वो माइंडसेट लेके बैठे रहोगे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं हो सकता, और वो निकला, एंड देन यू टॉर्चर देम, तो फिर वो इन्फ्लुएंस होंगे ना एक हार्ट ब्रेक के बाद, दिल बी लाइक कि यार सुसाइड ही कर लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू और अंडरस्टैंड. So it starts at a higher level of parents understanding and giving them that space ki I am here, you come and talk to me. एंड कहीं ना कहीं ये जो स्पेस है ना, इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है, ये जो गैप है इसलिए ज्यादा बढ़ गया है, मतलब जेनजीज में Yeah. एंड जो 30 35 या 40 ईयर्स के लोग हैं उनमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ना बहुत जल्दी आगे बढ़ी है पिछले, Right. स्पेशली इंडिया में बात करें पिछले 10 साल में। Right. 10 साल मतलब जो थोड़े पुराने लोग हैं वो इतने टेक्निकली इतने ज्यादा साउंड नहीं है। Mm-hmm. जेनजीज जो है वो टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, जिसकी वजह से जो गैप है स्पेस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब अडॉप्टेबिलिटी का। जैसे Right. अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम ए टेक गाय, टेक नॉट इन द सेंस की कोडिंग वगैरह आती है, बट Mm. टेक्नोलॉजी को मैं जल्दी अडॉप्ट करता हूँ, और जो नई नई चीजें हैं, कोई कोई नया नया पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है उसको मैं जल्दी अडॉप्ट करूंगा। Mm. लेकिन जो पुराने लोग हैं वो नहीं जल्दी कर पा रहे हैं, एंड Right. जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जेनजीज जो है ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब जेनजीज की जो जनरेशन आएगी वो इतनी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जेनजीज को अडॉप्ट करना आ गया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन को ना लोग काफी बार विशफुल थिंकिंग के रूप में लेते हैं, एंड Mm. सोचते हैं कि किसी को मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, बंगलो चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना, अपने फोन में वॉलपेपर लगा लेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, फोन में Yeah. वॉलपेपर लगा लिया, लिख लिया आई वांट डू दिस, आई Mm. वांट बाय दिस। तो ऐसा Mm. ऐसा होता है क्या, मतलब डज इट रियली वर्क, और काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैनिफेस्टेशन के काम साथ? करना, एब्सोल्युटली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप बस घर पे बैठे हो, सोच रहे हो कि मुझे 10 करोड़ की, 10 करोड़ का अर्निंग हो जाएगा एक महीने, ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. बट मैनिफेस्टेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट इज योर एनर्जी. आज ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू से वन थिंग इन योर पॉडकास्ट. अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड आप उसके बारे में ऑब्सेस्ड हो कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप कॉन्स्टेंटली उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो. क्योंकि दिस इज वरिंग, दिस इज नॉट बिलीविंग इन द हायर पावर और द एनर्जी और यूनिवर्स, आप चाहे जो बुला लो उसको. मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप इज बीइंग अलाइंड विद द एनर्जी, कि वट एवर आई एम वॉन्टिंग दैट इज कमिंग माई वे. आपको वो एनर्जी अलाइनमेंट करना पड़ेगा. इफ यू आर इनेटली अ वेरी नेगेटिव पर्सन एंड आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट बिकॉज यू आर अ वेरी नेगेटिव पर्सन, आप अगर कुछ टारगेट भी करोगे ना कि मुझे ये करना है, और या आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आपके जो सेल्फ डाउट्स आएंगे, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके जो डिसबिलीव्स आएंगे, दोज विल इंश्योर कि आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है. सो फर्स्ट इज द अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी, कि ये विशफुल थिंकिंग नहीं है. दिस इज लाइक a prayer that I'm letting out and I believe that it is going to come true. First. Second, working towards it. Like, I want to be India's most successful mindset coach. But मैं बैठी हुई हूँ, खुद मैं सोचे जा रही हूँ कि खुद से क्लाइंट्स आएंगे. अचानक एक दिन आएगा, बिकॉज मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अचानक एक दिन आएगा जब 100 लोग मुझे डीएम कर रहे होंगे. नॉट गोइंग टू हैपन. आई हैव टू पुट इन दैट एफर्ट. सो एफर्ट हैज टू कम. एफर्ट के आप अपने एफर्ट पे फोकस करो, and results, so just put it out in the universe with the belief that it's going to come true. And when those two things align,
is when manifestation comes into the picture. ग्रेट। ओके, कोई पर्सन अगर स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, सो Hmm. कुछ ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो अगर आपको शेयर करें और उनको इंस्टेंट रिलीफ मिले, कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट और स्ट्रेटजी। Sure. I think I recently made a reel on that as well. So first thing is deep breathing, Mohit. Like जब भी आपको वो स्ट्रेस एंजाइटी या कुछ भी सिचुएशन में आपको वैसा फील हो रहा है that you are not feeling okay, your body is feeling a little uncomfortable, with practice it will come. If you can just start like ये डीप ब्रीदिंग ना इज मैजिक, क्योंकि नॉर्मली सबकॉन्शियसली हम सब ब्रीथ कर रहे हैं. अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं वी आर ब्रीदिंग, बट ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट. बट जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड इज गेटिंग related to the breathing pattern that you have, and that really helps in overall calming your mind. First that, okay. Second is accepting or just recognizing कि आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है. लेट इट बी स्ट्रेस. सो जस्ट recognizing कि yes, I understand that I am feeling stressful. Self talk in any situation really helps कि हाँ, I'm recognizing that I'm feeling stressful. And third, attaching the word release with whatever you're feeling, because release is one word that instantly gives a signal to your brain that there is something that the brain needs to let go. So if you're feeling say angry or stressed and you just अपने में वो self talk करो that yes, I recognize that I'm feeling stressed, but I'm releasing it. I am releasing this feeling. I am releasing. जब आप उसको self talk में आप बोलते रहोगे ना, trust me, in few seconds or a minute you will feel an instant shift. Just these three things. आप थोड़ा 3-4 deep breathing करो and then just repeat, recognize your feeling, whatever you're feeling, and then release it. This is a Okay, very quick way, but it is very effective. great. What is self love? Oh, everything. Please explain it. Self-love is everything, and people confuse it with being selfish. Yeah, It's not. this is It's going to be my next question. वो सही से okay. आपने पहले पॉइंट कर दिया. Okay. Self-love is accepting yourself for what you are. Right? आप जब अपने आप से प्यार करते हो ना, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो. And sadly, all our life or maximum part of our life we spend in getting a validation from others, कि कोई और मुझे अच्छा बोले, कोई और मुझ में अच्छा ही देखे, कोई और मुझे बोल दे कि हाँ, you have these things that I am proud of. Self love is about standing in front of the mirror and telling yourself that you are beautiful, you are loved, I am proud of you. आप अपने आप को बोलो वो चीज, क्योंकि जब आप इस चीज को करते हो, when you start loving yourself, no, external chatters आपको डिस्टर्ब करना बंद करते हैं to a great extent. And when that happens, inevitably you are in control of your emotions, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है. That is self love. And self love is something that everybody should practice and should teach their kids from a very young age, for sure. And what is the step by step process to uh, start loving oneself? Actually, आप अगर self love के बारे में बोलो, again it is a journey, because Okay. we are taught to not love ourselves. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए ये करो, दूसरे को others should say good about you. अंकल आंटी को लोग क्या कहेंगे, अंकल आंटी क्या कहेंगे, उनके सामने ऐसे बिहेव करो, एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हिच आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड थिंग. बट उन चीजों की वजह से ना हम अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं. वी ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल फर्स्ट, एंड व्हाइल दैट हैज बीन ग्लैमराइज्ड अ लॉट, और एक और लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट किया गया है कि आप बहुत अच्छे हो अगर आप लोगों के बारे में सोचते हो. यस, आई अग्री टोटली. बट उस प्रोसेस में अगर आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, अगर उस प्रोसेस में यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन थिंग्स दैट मीन समथिंग टू यू और आर इम्पोर्टेंट टू यू, जो आपके वैल्यूज है, देन उस इम्प्रेशन, लाइक इवन इफ यू आर इम्प्रेसिंग अदर्स, यू आर नॉट हैप्पी इन योर सेल्फ. सो टू डिस्कवर कि आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स है, आपकी क्या कंडीशनिंग है, किस रीजन से आप पीपल प्लीजिंग करते हो, किस रीजन से आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है. सेल्फ लव तक जाने के लिए इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. एंड अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप मेथड चाहते हो जो एटलीस्ट कैन बिगिन सेल्फ लव, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग.
इट इज कॉल्ड मिरर वर्क. आप एवरी डे मॉर्निंग या नाइट को stand in front of the mirror and tell yourself things that you want others to say about you. Suppose you feel that you are an underconfident person and कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं, लोगों को दिखे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, look at yourself in the eye and repeat it that I know I am a confident person. I am a very confident person. I love myself. I love the way I am. जब आप जो आप बाहर के लोगों से सुनना चाहते हो ना, say those things to yourself. This is the first step towards getting into the journey of self-love. To be there for yourself. Okay, great. And we are at the end of this podcast. Yeah. So my last question is like, is there any message which you wanna say with those people who are going to watch it from your heart? Any one message? Yeah, I think I already said it कि you know, if you feel कि आपको ऐसा कुछ है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, you feel that there's something that you're not able to deal with, please come out of the fear of judgment. जब आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो ना, तभी लोग आपको जज कर रहे हैं. अगर आप छोटे छोटे चीजों में रो रहे हो तो यू आर बीइंग जज्ड फॉर दैट. सो यू माइट एज वेल गेट जज्ड एंड गेट बेटर. इफ एट ऑल यू फील दैट पीपल आर गोइंग टू जज यू, हो जाने दो. इट इज जस्ट अबाउट insane 20 seconds of bravery. बस वो 20 seconds of bravery when you just have to have that thing कि अब मुझे बोलना है. And trust me, you will be okay. With the right kind of guidance, with the right kind of people, you will be okay. And अगर आपको ऐसे लगता है कि you have met somebody who couldn't really help you, please don't think that these things are nonsense या ये चीजें काम नहीं करती. Maybe, just maybe that person was not the right fit for you. There are people who can help you. So reach out for 100%. help. Don't keep it in yourself. Doesn't matter if people judge. वो हम ऐसे भी हो रहे हैं every day. Even if we are not doing anything, या फिर Absolutely. कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं घर में बाहर जा रहे हैं, we are getting judged every single Every second, single every day. moment. Yeah, and I think it's very important for people to be okay with it. You know, it's okay. Let them judge now. That Yeah. doesn't change who you are. And उसके लिए self love की बहुत जरूरत है. Thank you so much for asking this question. Actually, there is a interconnection. कि when you start loving yourself enough, people's judgment, while you know those are there, they start affecting you very, very less. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, Devankita. It was lovely talking to you. You have shared a lot of insightful insights here in this session. मुझे भी काफी नई चीजें सीखने को मिली. एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोगों ने यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं या देखेंगे या देख चुके हैं, वो भी काफी कुछ सीखने वाले हैं. एंड इफ समवन वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी विद यू सो दैट दे कैन ओवरकम द स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और दे कैन हील देमसेल्फ, past trauma, childhood trauma, how Absolutely. they can contact you. So first, my Instagram page is there. That is Yeah. mindsetcoach.debankita. You can reach out to me there. So you just ping me. I am very active on my DMs, and I will reach out to you for sure. Or Great. you can email me at I don't know if everybody will remember, but reachdebankita@gmail.com. Great. And guys, if you're watching it till here, you can just check out the description of this video. You will get the link to contact Devankita, and you can reach out to her. Definitely, she is best in doing what she does. So definitely, she can help you out. So thank you so much, Devankita, for your time, for Thank your you.